तो मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर 102 में एक डायग्राम है, वो आप बना लीजिएगा। बना लिया था आपने? ठीक है, लास्ट पॉइंट बताएंगे क्या बताया था आपको? लास्ट पॉइंट भी बताएगा क्या बताया था? ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट लिखिए इन्फेक्शन। फर्स्ट राइट डाउन इन्फेक्शन। in this in this bacteriophages which are cultured in this bacteriophages which are cultured in two separate medium, which are cultured in two separate medium, one containing radioactive sulfur S35, one containing radioactive sulfur S35, and another containing radioactive phosphorus P32, radioactive phosphorus P32 is separately used to infect separately used to infect two different culture medium of E. coli. Two different culture medium of E. coli. ठीक है, and during this process bacteriophage integrate integrate its DNA with DNA of bacteria, DNA of bacteria. ठीक है ना? सेकेंड स्टेप, blending. blending मीडियम इज एजिटेटेड, मैंने इसको ब्लेंड किया गया, हिलाया गया जोर से। मीडियम इज एजिटेटेड in order to medium is agitated in order to separate bacteriophage from bacteria, to separate bacteriophage from bacteria. ठीक है, in bracket write down, because of this step
because of this step, this experiment is also known as blending experiment. Because of this step, this experiment is also known as blending, BLENDING, blending experiment. ठीक है. Third step, centrifugation. Centrifugation. Now medium is centrifuged. Now medium is centrifuged. In one medium which contains radioactive sulfur, in one medium which contains radioactive sulfur, radioactivity is observed in supernatant. सुपरनेटेंट का मतलब जैसे आप सेंट्रीफ्यूज करोगे ना टेस्ट ट्यूब में, तो जो ऊपर लिक्विड रहता है उसी को सुपरनेटेंट कहते हैं. Observed in supernatant which contains capsid. Which contains capsid. ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी पॉइंट का पार्ट है. इन अदर मीडियम radioactivity is observed in sediment. Radioactivity is observed in sediment which is due to phosphorus, and this sediment contains bacteria. This sediment contains bacteria. So it is the phosphorus. Which is present in DNA. So it is the phosphorus which is present in DNA have entered inside the bacterial cell. Have entered inside the bacterial cell. And on the basis of this observation, it was concluded that DNA is genetic material. DNA is genetic material. क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है,
क्योंकि पहले इसने अज्यूम कर लिया था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करता बैक्टीरियोफेज का, तो जो अंदर घुसा वो क्या था, डीएनए था। ओके, चलिए ना, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ ना, अगर हम देखें तो वो डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट लिखिए, both DNA and RNA, both DNA and RNA can act as genetic material. Both DNA and RNA can act as genetic material. RNA is genetic material in case of RNA is genetic material in case of tobacco mosaic virus, or in short we call it TMV, and QB bacteriophage. QB bacteriophage. Now, अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। तो 4 क्राइटेरिया है, अगर कोई सब्सटेंस इसको फुलफिल कर रहा है तो इट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। पहला कहता है इट मस्ट बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, मतलब अपना कॉपी कर सके, ठीक है। दूसरा कहता है इट मस्ट बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है, जो भी सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कहता है इट शुड अलाउ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, दैट मींस इट कैन अंडरगो म्यूटेशन, ठीक है, तभी तो इवोल्यूशन होगा, नया नया कॉम्बिनेशन म्यूटेशन वेरिएशन क्रिएट करेगा और जिसके कारण इवोल्यूशन में वो हेल्प करेगा। चौथा कहता है इट मस्ट बी एबल टू ट्रांसमिट इटसेल्फ एज अ मेंडेलियन ट्रेट, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक स्टेबली ट्रांसमिट हो मेंडेलियन ट्रेट की तरह, ठीक है। तो राइट डाउन, टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, टू एक्ट एज genetic material, a substance must fulfill, a substance must fulfill following 4 criteria. Following 4 criteria. First, it must be able to generate its own replica. First, it must be able to generate its own replica. Second, it must be chemically and structurally stable. It must be chemically and structurally stable. Third, it should allow scope for, it should allow scope, S-C-O-P, scope for slow changes
It should allow scope for slow changes. That is, it can undergo mutation. That is, it can undergo mutation. Next लिखिए. It should be able to express itself हाँ रेप्लिका भी आएंगे सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे चिंता मत करो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इट शुड बी एबल टू express itself as Mendelian character as Mendelian character ठीक है अब देखो मैंने 4 पॉइंट आपको बताया कि अपना रेप्लिका बना सके स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल हो स्लो स्कोप हो स्लो चेंज के लिए मतलब म्यूटेशन हो एंड फोर्थ मैंने कहा मेंडेलियन ट्रेट की तरह ट्रांसमिट हो ठीक है अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं ठीक है पहले डिस्कस करेंगे फिर मैं उसको लिखवा दूंगा देखो पहला पॉइंट मेरा ये था कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका तो स्टार्टिंग में 3 कैंडिडेट थे जेनेटिक मटेरियल के डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन ठीक है तो डीएनए और आरएनए बाय फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी दे कैन जनरेट देयर ओन रेप्लिका मतलब अगर एक स्टैंड का बेस पता है तो दूसरा स्टैंड का बेस हमें पता है अगर इधर ए है तो इधर टी होगा इधर जी है तो इधर सी होगा तो डीएनए और आरएनए बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करके अपना रेप्लिका बना सकते हैं बट प्रोटीन कैन नॉट तो फर्स्ट राउंड में ही प्रोटीन बाहर हो गया कि प्रोटीन जो है वो अपना रेप्लिका नहीं बना सकता ठीक है तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई डीएनए आरएनए बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करके अपना रेप्लिका बना सकता है बट प्रोटीन कैन नॉट तो प्रोटीन रेस से बाहर अब डीएनए आरएनए के बीच में फाइट है दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये कहा कि जो डीएनए और आरएनए है ठीक है मतलब सॉरी दूसरा पॉइंट ये था कि इट मस्ट बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल तो अब हम डीएनए और आरएनए को कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर और केमिकल स्टेबिलिटी पे अगर आपको याद होगा तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि भाई आपने ऐसे स्ट्रेन को तो मार दिया ठीक है लेकिन उसका डीएनए का नेचर चेंज नहीं हुआ दैट मींस डीएनए इज थर्मली स्टेबल तो यहां से एक स्टेबिलिटी मिलता है दूसरा जब आप आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आरएनए में क्या होता है वन एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन लेवल एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है कहां पे सेकेंड कार्बन पे दिस प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा ओएच मेक्स आरएनए मोर रिएक्टिव ठीक है दस अनस्टेबल अगर कोई भी चीज रिएक्टिव है तो अनस्टेबल है ठीक है उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट राइबोजाइम्स होते हैं तो अगर कोई चीज कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब वो रिएक्टिव है तो कुछ भी रिएक्टिव होगा तो केमिकली स्टेबल नहीं होगा ठीक है फोर्थ अगर आप डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो इन केस ऑफ डीएनए वी हैव थाइमिन वेयर एज इन केस ऑफ आरएनए वी हैव यूरासिल थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल ठीक है इन आरएनए ठीक है थाइमिन इज नथिंग बट इट इज 5 मिथाइल यूरासिल लेकिन ये जो थाइमिन का प्रेजेंस है ठीक है डीएनए में इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए कब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब डीएनए रिपेयर होता है ये हमें पढ़ना नहीं है खाली आप ये याद रखिएगा क्योंकि there is a proper mechanism of DNA repair but it is not in your syllabus so I'm not entering into that topic but जो presence of thymine है DNA में that is 5-methyl uracil it provides extra stability to DNA molecule as
इट हेल्प्स ड्यूरिंग डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो यहां सेकेंड पॉइंट से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ हो गया कि जो केमिकली और स्ट्रक्चरली है वो डीएनए मोर स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू आरएनए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमने कहा कि इट शुड अंडरगो स्लो चेंजेस, दैट मींस इसमें म्यूटेशन हो सके। बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन अंडरगो म्यूटेशन, दोनों में म्यूटेशन हो सकता है। एंड rate of mutation in RNA is far greater than or far faster than DNA, and that's why ये जो RNA वायरसेस जैसे कोरोना वायरस है, इन सबों में रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो बोथ कैन अंडरगो म्यूटेशन बट द रेट ऑफ म्यूटेशन इज फास्टर इन केस ऑफ RNA। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई RNA वायरसेस इवॉल्व फास्टर देन DNA वायरसेस। ठीक है, अब चौथा आता है। ठीक है, चौथा ये कहता है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज ए मेंडेलियन ट्रेट। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया था कि हमारा डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ऐसा कुछ आपको बताया था मैंने, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो it can directly express itself as a protein, but if DNA is genetic material then it requires help of RNA to express itself as a protein. So the rate of expression of RNA is faster than DNA. ठीक है, both can express themselves as a Mendelian trait, but RNA directly express कर सकता है प्रोटीन के फॉर्म में, but DNA को अगर प्रोटीन के फॉर्म में करना है तो RNA का रिक्वायरमेंट होगा एज ए मैसेंजर। तो हमने सारे कैरेक्टर को देखा, but DNA was selected as genetic material over RNA. Why? Because it is chemically and structurally more stable than DNA, sorry, than RNA. So ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है जिसमें हम बताते हैं कि डीएनए जो है केमिकली और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू आरएनए, ये डीएनए को एज दे देता है आरएनए के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इट इज कंसिडर्ड एज मोर फेथफुल, मतलब ज्यादा भरोसे के लायक माना जाता है फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली और केमिकली ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया ये पॉइंट सबको? सबको क्लियर है ये? तो एक एक करके हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पहला पर्पस था समझाना, अब लिखना शुरू करते। राइट डाउन। अरे 5 ब्रोमो यूरासिल जो है बेस एनालॉग होता है, वो थाइमिन को रिप्लेस करता है, म्यूटेशन कॉज करता है, एटी पेयर को जीसी पेयर में कन्वर्ट करता है। मुझे लगता है म्यूटेशन में मैंने आपको बताया होगा। इट इज 5 मिथाइल यूरासिल, नॉट 5 ब्रोमो यूरासिल। ठीक है ना? राइट डाउन। बोथ डीएनए एंड आरएनए, both DNA and RNA can generate their replica. Both DNA and RNA can generate their replica by following base pairing rule. Both DNA and RNA can generate their replica by following base pairing rule, but protein fails to do so. ठीक है, सेकेंड लिखिए। Through Griffith's experiment, it can be inferred that DNA is thermally stable
DNA is thermally stable. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, presence of thymine in place of uracil, presence of thymine in place of uracil in DNA provides extra stability to DNA, especially during DNA repair, especially during DNA repair. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, presence of one extra OH group at second carbon position of sugar makes RNA more reactive, thus less stable. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, RNA can act as catalyst. RNA can act as catalyst. So it is reactive. Thus less stable. So it is reactive, thus less stable. ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए, both RNA and DNA can undergo mutation. Both RNA and DNA can undergo mutation and rate of mutation of RNA is faster than DNA. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, RNA can directly code for
RNA can directly code for protein. So it can easily express itself. So it can easily express itself. Whereas DNA requires help of DNA requires help of RNA to express itself, to express itself. ठीक है? Change the paragraph and write down. As DNA is structurally and chemically, as DNA is structurally and chemically more stable than RNA, structurally and chemically more stable than RNA, it is selected as genetic material. It is selected as genetic material over RNA. It is considered as more faithful. It is considered as more faithful than RNA, more faithful than RNA for storage and transmission of genetic information. Storage and transmission of genetic information. हाँ भाई, समझ में आया सबको? किसी को डाउट वाउट तो नहीं है? क्लियर है सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नो सर नो डाउट मतलब? अच्छा, नो सर नो डाउट. मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आरएनए वर्ल्ड. नेक्स्ट हेडिंग इज आरएनए वर्ल्ड. आरएनए वर्ल्ड. तो हमने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डीएनए से भाई आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. ठीक है ना? ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ, लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड अराउंड आरएनए. जैसे आप ये इवोल्यूशन में पढ़े होंगे शायद. इवोल्यूशन हो गया आपका? इवोल्यूशन हो गया? उसमें पढ़ा था? चलिए चलिए थोड़ा सा मैं भी इस पे प्रकाश डाल दूं. देखिए, ये कहता है कि लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ओरिजिनेटेड अराउंड आरएनए.
तो इनिशियल ये कहता है कि इनिशियल फेज में दिस आरएनए वाज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, ठीक है। बट बोला गया कि कोर्स ऑफ टाइम में ये जो फंक्शन है आरएनए से छीन लिया गया, एंड नाउ इट इज नॉट एक्टिंग एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, कहीं कहीं अभी भी कैटलिस्ट है ये। तो कहता है कि भाई हमें पता है कि आरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। तो देखा गया कि प्रोटीन जो है इट इज मोर डाइवर्स विथ रिस्पेक्ट टू आरएनए। नंबर ऑफ प्रोटीन 20 अमीनो एसिड है, उनका कितना सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना, एज प्रोटीन इज मोर डाइवर्स देन आरएनए, देन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट और कैटालिसिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आरएनए से थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए बना। As DNA is structurally and chemically more stable than RNA, function of genetic material is transferred from RNA to DNA. ये ज्यादा भरोसेमंद था कि केमिकली और स्ट्रक्चरली ये स्टेबल था, ठीक है। राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ ऑन दिस वर्ल्ड is originated around RNA. Initially, RNA was acting as both genetic material. RNA was acting as both genetic material as well as catalyst, as well as catalyst. Through translation, through translation from RNA, through translation from RNA, protein is produced. Protein is produced. And as protein is more diverse, as protein is more diverse than DNA, it is selected as catalyst. It is selected as catalyst over RNA. Next लिखिए। From RNA, through reverse transcription from RNA, through reverse transcription, DNA is produced. DNA is produced, and as DNA is, and as DNA is structurally and chemically more stable than structurally and chemically more stable than RNA, it is selected as genetic material. It is selected as genetic material
over RNA. Genetic material over RNA. ठीक है? Now, next heading is DNA replication or simply replication. So next heading is ठीक है. प्रोटीन इज मोर डाइवर्स मतलब आपके पास आरएनए कितने टाइप के हैं? ब्रॉडली 3 टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए. एमआरएनए का कोई और टाइप नहीं है. टीआरएनए में 21 टाइप्स हो सकते हैं और आरआरएनए में 5-6 टाइप, 7 टाइप मान लो. तो टोटल कितने टाइप हो गए? 30 टाइप. अगर 20 अमीनो एसिड है उससे कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप प्रोटीन बना सकते हो? अच्छा, डीएनए नहीं, मोर डाइवर्स देन आरएनए. वो डीएनए गलत निकल गया. ठीक है. ओके. ना नेक्स्ट थिंग इज रेप्लिकेशन. तो जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया तो उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. जैसे अगर मान लीजिए, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए का डबल हेलिक्स है. ठीक है. इन्होंने कहा कि भाई जब रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड बोथ दीज स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है. एंड देन बाय फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल, जैसे मान लीजिए ये 5' to 3' है, ये 3' to 5' है. ठीक है. ये 5', 3', 3', 5'. तो कह रहा है कि दोनों स्ट्रैंड जो है इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड बाय फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल दे विल सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो इनका ये कहना था कि जो नया डबल हेलिक्स बनेगा, ठीक है, जो भी नया डबल हेलिक्स बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पैरेंटल होगा, ये काला वाला, और एक न्यूली सिंथेसाइज होगा. ऐसे रेप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. ठीक है. थ्रो डाउन. While proposing double helical model of DNA, while proposing double helical model of DNA, Watson and Crick also proposed mechanism for replication of DNA, also proposed mechanism for replication of DNA. According to them, at the time of replication, two strands of DNA separate from one another. Two strands of DNA separate from one another and act as
template strand act as template strand and by following base pairing rule, it will synthesize complementary strand of DNA. It will synthesize complementary strand of DNA. So in a newly synthesized DNA double helix, one strand is parental, and another strand is newly synthesized. Another strand is newly synthesized. And this is referred as semi-conservative mode of DNA replication. This is referred as semi-conservative mode of DNA replication. ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. और इन्होंने कहा कि भाई डीएनए डबल हेलिक्स है ना, जब इसको अपना कॉपी करना होगा ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. तो ये ब्लैक वाला जो है पैरेंटल डीएनए है, तो ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ठीक है, और नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेगा. तो जो नया डीएनए डबल हेलिक्स बना उसमें ये ब्लैक वाला पैरेंटल है और ये ब्लू वाला नया है. तो ऐसे मोड को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है ना, बना लिया सबने ये. बना लिया, ओके ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है बाय Michelson and Stahl. By Michelson and Stahl. First one लिखिए, they used Escherichia coli or E. coli as an experimental material. They used E. coli or Escherichia coli as an experimental material. ठीक है, अब इसको समझ लो. अगर समझ में आ गया ना तो बहुत आसान है. देखो इन्होंने क्या किया, इस ई कोलाई को सेवरल जनरेशन के लिए एक मीडियम में ग्रो किया
जहां पे हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15 was the only source of nitrogen. ठीक है, NH4Cl N15 is the only source of nitrogen. बहुत जनरेशन तक इसको ग्रो करता रहा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन था दे बिकम N15. ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इससे डीएनए को आइसोलेट किया. ठीक है, सेंड नोट्स ऑफ द क्लास. रिक्वेस्ट कर रहे हो कि डायरेक्शन दे रहे हो दीपिका? आदेश है आपका, आप क्या कर रहे हो यहां पे बैठ के? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सेवरल जनरेशन के लिए N15 वाले मीडियम में ये हेवी आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप नहीं है, हेवी आइसोटोप. ठीक है, for several generation they cultured this E. coli in a medium containing heavy isotope of nitrogen, the N15, as the only source of nitrogen. अब इसके बाद इससे डीएनए को आइसोलेट किया. ठीक है, अब डीएनए जैसे मान लो कि ये हेवी आइसोटोप वाला है 5' 3', 3' 5'. ठीक है, ये हेवी आइसोटोप है. अब इसका सेंट्रिफिकेशन किया, सीजियम क्लोराइड, मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा, मैं अभी समझा रहा हूं सिर्फ. सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन. ठीक है, जब इन्होंने सेंट्रिफिकेशन किया इसका, इन्होंने क्या देखा कि एक बैंड बन के आया टेस्ट ट्यूब में यहां पे, इसको इन्होंने कहा हेवी बैंड और N15 बैंड. ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इस बैक्टीरिया को जिसको सेवरल जनरेशन से N15 में ग्रो कर रहा था, उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल मीडियम में. नॉर्मल मीडियम क्या हुआ, N14 NH4Cl. और ये बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है. तो अगेन आफ्टर 20 मिनट डीएनए वाज आइसोलेटेड नॉर्मल मीडियम में. तो अब देखो, ये स्टैंड अलग होगा, ये स्टैंड अलग होगा, मैंने आपको बताया, और ये अपना फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेगा. ठीक है, फिर इसका ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया गया. तो इन्होंने क्या देखा कि एक बैंड बन के आया जो ये इस लाइन पे था, तो ये इससे थोड़ा हट के था, थोड़ा हल्का था, तो जितना हल्का रहेगा उतना ऊपर आएगा. ठीक है, इसको मैं हाइब्रिड बैंड को अलग कलर से ही बनाता हूं. ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका आया, दिस इज हाइब्रिड बैंड और इट इज N15 N14 बैंड. ठीक है, 20 मिनट के बाद किया. फिर आफ्टर 20 मिनट मींस 20 + 20 40 मिनट फिर से इससे डीएनए आइसोलेट किया. तो अब देखो, जब 20 मिनट के बाद फिर करोगे आप, तो क्या होगा, ये स्टैंड्स फिर अलग होंगे. ठीक है, ये ब्लू वाले स्टैंड भी अलग होंगे. अब ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा अपना, ये सारे अपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे. तो अब देखो यहां पे तो सिर्फ पहले वाले में सिर्फ हेवी स्ट्रैंड आ रहा था, दूसरे वाले में हाइब्रिड आया. अब तीसरा स्टेप जब आ रहा है तो यहां पे हाइब्रिड भी है और लाइट भी है. तो जब आप इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो आपका ये बना हाइब्रिड वाला बैंड, ठीक है, प्लस एक N14 वाला बैंड बनेगा, वी कॉल इट लाइट बैंड. समझ में आया कि लाइट बैंड इसलिए बन रहा है कि भाई नया स्टैंड जो बनेगा वो यूज करेगा मीडियम, एक तो पुराना है एक नया है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन दे कंक्लूडेड दैट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव. कुछ समझ में आया आप लोगों को कि मैं ही समझ रहा हूं? थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना. एक काम करना, घर में जाके एक बार इसको एनसीईआरटी से, कोई बात नहीं अदिति नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा, अभी अगर एनसीईआरटी इसको पढ़ लेना. ठीक है, थैंक यू, चलिए एंजॉय कीजिए, गुड नाइट.